Anybody who is planning to go to Nottingham Trent University or University of Nottingham this September, do check out this property. Hi guys, welcome back to my channel iChan in UK. So those of you who have been following my videos and watching my channel, so like when I used to study in Loughborough University, उस time पे if you remember I did Loughborough student accommodation tour, and if you haven't watched my video, watch that video. I'll be sharing the link. So मैंने उस टाइम पे अपना Loughborough shared apartment दिखाया था where I used to stay, and after studying from Loughborough, after graduating from Loughborough, I started working in Boots head office, which is in Nottingham. I'll be showing you my Nottingham accommodation where I used to stay, and I'm gonna show you virtual tour, and I'm gonna also talk about how much I paid and the benefits of staying in that particular accommodation. This is the Express building in Nottingham city centre. This was the building, and I'm gonna show you their website. Right, so the name was Express Studio. So these are all studio apartments in the heart of Nottingham city centre. एंड ये बेसिकली स्टूडेंट अकोमोडेशन थे, और इधर 1 साल का सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्रॉम सितंबर टू सितंबर. दिस इज़ द बिल्डिंग. इनफैक्ट मेरे पास अपनी क्लिपिंग्स भी हैं, तो मैं अपना रूम भी दिखाऊंगी. So these were some of the studios. So either, I think if I'm not wrong, there are a total of, I guess, 25 studios. तो सारे studios almost same ही दिखते हैं, layout सबका almost same ही है. So you can do like a virtual tour. So the rent of this accommodation is $771. So ये kitchen है and toilet, and इन्होंने सब कुछ, इधर सारी facilities हैं. There's a bed and study table and chair, and you can like also do a virtual tour. So this was the accommodation. You can like do a virtual tour from this website. तो पूरा 360 डिग्री एक व्यू मिल जाता है. So guys, this was my studio 20, and my weekly rent was £189, and this video was actually taken the day I was moving out, इसलिए मेरा studio एकदम खाली दिख रहा है. But yeah, I really miss this place. So guys, I was paying a total of I think around 860 per month, and लोग बोलेंगे कि 860 बहुत ज़्यादा रेंट था, which I don't think 860 ज़्यादा था, because it is inclusive of your electricity bill, Wi-Fi and water bills, and the best thing is that it is right in the city center. तो सारा like there's Victoria Center जो उसके एकदम सामने था, and सारे stores and banks सब कुछ आसपास. तो एक तरफ से मेरे ख्याल से कम्यूटिंग कॉस्ट ही कम होती है अगर किसी को सिटी सेंटर जाना होता है. और जो ये स्टूडेंट ओकलेट्स जो हैं वो हमेशा प्रॉपर्टीज़ देते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे. सो इट इज़ 11 months कॉन्ट्रैक्ट, एंड इफ़ यू विश टू लीव द प्रॉपर्टी बिफोर 11 months तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबलेट द अपार्टमेंट. अकोमोडेशन का मुझे बहुत अच्छा पार्ट ये लगता था कि टेस्को जो है, टेस्को एक्सप्रेस, वो बिल्डिंग के एकदम नीचे ही था. तो अगर कुछ भी सुबह कोई इमरजेंसी है, यू नीड मिल्क, ब्रेड, एग्स, कुछ भी चाहिए, नीचे से सब मिल जाता था. नीचे पाउंडलैंड भी है, एंड आई जस्ट फेल्ट दैट एवरीथिंग इज़ सो एक्सेसिबल. सारे बसेस भी नीचे से मिल जाती हैं, ट्रैम्स भी थी. तो आई रियली इन्जॉयड माई स्टे. तो दिस वॉज अ स्टूडेंट अकोमोडेशन, एंड
एंड आई वॉज अ वर्किंग प्रोफेशनल जब मैंने ये अकोमोडेशन में जब मैं आई, तो आई टोल्ड द मैनेजमेंट वेरी क्लियरली दैट आई एम नॉट अ स्टूडेंट, सो आई होप दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. तो उन्होंने कहा कि दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बट यू माइट हैव टू पे काउंसिल टैक्स. तो इधर यूके में काउंसिल टैक्स पे करना पड़ता है एंड स्टूडेंट्स आर नॉट लाइबल टू पे दैट, बट वंस यू ग्रेजुएटेड तो आपको लाइक लीगली यू आर सपोज टू पे काउंसिल टैक्स. हाउएवर मेरे को कभी काउंसिल टैक्स का नोटिस कभी आया ही नहीं, तो मैंने कभी नहीं पे किया काउंसिल टैक्स. एंड इस अकोमोडेशन का ये था बिकॉज एज आई सेड कि ये लोग अकोमोडेशन एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देते हैं. सो इधर जो रेंट देना होता था वो एक क्वार्टरली उसमें देना होता था कि दे यूज टू बी 3 इंस्टॉलमेंट्स, कि 3 इंस्टॉलमेंट्स में आपको रेंट पे करना है. बट आई मेड इट वेरी क्लियर टू देम दैट यू नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट एंड आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, और मेरे लिए ऐसे क्वार्टरली एक साथ इतना रेंट देना मुश्किल है. तो आई विल बी मोर comfortable पेइंग द रेंट ऑन अ मंथली बेसिस. सो आई थिंक तो मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दे वर हैप्पी टू एक्सेप्ट द रेंट ऑन अ मंथली बेसिस. ऑनेस्टली अगर मैं रेंट के हिसाब से बात करूँ, आई थिंक द रेंट वॉज वर्थ इट. मेरे को कभी रेंट ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत अनजस्टिफाइड है या फिर कुछ ज़्यादा ही रेंट है, बिकॉज एक चीज़ थी कि एवरीथिंग इज़ एक्सेसिबल. और एक तो सिटी सेंटर में था एंड आई वॉज लिविंग इन अ स्टूडियो जहाँ पे मुझे अपनी किचन या अपना टॉयलेट किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ रहा. तो वॉट एल्स. So my studio was actually on 3rd floor and इधर से सीधा नॉटिंघम सिटी काउंसिल की बिल्डिंग दिखती थी जो इतना अच्छा व्यू था. And honestly at this point I really miss this studio and Nottingham. But yeah, anybody who is planning to go to Nottingham this year to either University of Nottingham or NTU, do check out this property. And if you like this video, please subscribe to my channel and share this video with as many people as you can.